y1 and b 6 comma minus 8 is divided by p x comma y. For this we let the ratio a ratio. अगर हमें we have to find the ratio, then we take the ratio a ratio 1. Then a and b are the 2 points here. We write a and b, then we get a line segment AB, and P is the point of intersection. We divide the line segment AB in the ratio A ratio 1. So x is equal to AX2 plus 1 into x1 upon A plus 1, and y is equal to AY2 plus 1 into y1 upon A plus 1. Isn't it? Are you understand? Yes, sir. अब देखिए थर्ड पॉइंट जो है, if the point divides the line segment joining the point A x1 comma y1 and B x2 comma y2 in the ratio 1:1, means P will be the P if P is the midpoint of AB. So we divide the line segment AB in the ratio 1:1 or two equal parts. Then the coordinates of midpoint. तो अगर हमें ये P is the midpoint of AB, then x is equal to x1 plus x2 upon 2 and y is equal to y1 plus y2 upon 2. तो हम डायरेक्ट ये जो है मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे. कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट x is equal to x1 plus x2 upon 2 and y is equal to y1 plus y2 upon 2. Then four showing the quadrilateral. If we have to show the quadrilateral as a parallelogram, then the coordinates of the midpoint of diagonal first equal to the coordinates of the midpoint of diagonal second. दोनों के midpoint अगर इक्वल हो जाएंगे, coordinates इक्वल हो जाएंगे, तो means that coordinator will be parallelogram. Coordinates of P, point P, midpoint of AC is equal to coordinates of the point P, midpoint of BD. Then fifth, if we have to find the median, length of median, then in this ABC is a triangle and AM is the median. Median of a triangle divides its opposite side into two equal parts. So M is the midpoint of BC. So if we have to find the midpoint of BC, then x is equal to x1 plus x2 upon 2 and y is equal to y1 plus y2 upon 2. M, the x comma y are the coordinates of M, and length of AM is equal to root over a minus x whole square plus b minus y whole square. समझ में आ रहा है बेटा? बच्चों समझ में आ रहा है बेटा? Yes, Hello? sir. Yes, sir. If you have any problem, you can ask without any hesitation in your mind. Sixth part देखिए, to find the coordinates of the center of the circle. If we have to find the coordinates of the center of the circle, then we apply the midpoint condition. X is equal to x1 plus x2 upon 2 and y is equal to y1 plus y2 upon 2. Then seventh है देखिए, if we have to find the coordinates of the point of trisection. Trisection means if the points divide the line segment into three equal parts. अगर तीन equal parts में दो पॉइंट जो है किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करते हैं, मीन्स वी कैन से द पॉइंट्स डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू थ्री पार्ट्स. इट इज कॉल्ड ट्राइसेक्शन. समझ में आया बेटा? समझ में आ रहा है? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपका रेस्पॉन्स आना चाहिए बेटा. तो देखिए ए जो है x1 y1 है एंड बी के कोऑर्डिनेट्स जो है x2 y2. नाउ वी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ the point Q with the help of section formula. Then after we find the coordinates of P using the midpoint formula. तो ये देखो P and Q are the points on the line segment AB. P and Q divides the line segment into three equal parts, 1:1:1. ठीक है? तो AP कितना हो जाएगा? एक AQ को हमने लिया M1 is equal to 2 and QB M2 is equal to 1. Then coordinates of Q A निकालेंगे. A is equal to M1 x2 plus M2 x1 upon M1 plus M2.
and b y1 sorry m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. So coordinates of the point now coordinates of the point mid point p. अब p के निकालेंगे इसमें तो आ जाएगा हमारा a और b निकाल दिया हमने, तो x is equal to x1 plus a upon 2 and y is equal to y1 plus b upon 2. इसमें if you have any problem or any doubt you can ask me. बेटा किसी को कोई अगर समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकता है, जो अभी मैंने पॉइंट आपको 7 पॉइंट डिस्कस करे, इसमें इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और यू विल नॉट अंडरस्टैंड देन यू कैन आस्क. सर 7th वाला बता दो दोबारा से. अच्छा हाँ, ये 7th वाला इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आता है इसका. देखिए A and B are 2 points and if we join AB then we get a line segment AB. P and Q divides the line segment AB into 3 equal parts. 3 equal parts में ट्राइसेक्शन. अगर 3 पार्ट में कोई लाइन सेगमेंट डिवाइड होती है तो उसको बोलते हैं ट्राइसेक्शन. ठीक है, तो P and Q divides the line segment AB into 3 equal parts. 1 जब 3 इक्वल पार्ट हो गया तो 1 का रेशियो आ गया सब में, है ना. ठीक है, अब हमने पहले ए क्यूब का लिया, ए क्यूब में निकाल जो है तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2. तो m1 क्या ले लेंगे हम 2 एंड क्यू बी इज इक्वल टू m2 रेशियो 1. तो m1 इज इक्वल टू 2 और m1 तब हम सेक्शन फॉर्मूला करेंगे. तो अभी क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या लिए हमने a, b. तो a इज इक्वल टू क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. a और q के a और b से ले लेंगे. ठीक है, ये और b इक्वल टू क्या आ जाएगा m2 है, तो उसमें पता चल जाएगा आपको कैसे निकालना है. ठीक है, ओके बेटा, समझ में आया बेटा. हाँ अब देखिए एक्सरसाइज 7.2. ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1,7 and 4,-3 in the ratio 2:3. So here A and B are 2 points. A coordinates of A -1,7 and coordinates of B 4,-3. m1 is equal to 2 and m2 is equal to 3. ये गिवन है. रेशियो जो है 2:3 मीन्स m1 is equal to 2 and m2 is equal to 3. और हमने x1 is equal to -1, y1 is equal to 7, x2 is equal to 4 and y2 is equal to -3. ये हमने पहले नोट कर दिए. ठीक है, अब देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P x, y. इसमें हम क्या करेंगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला x is equal to m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल x फाइंड करेंगे. तो m1 कितना है 2 इंटू x2 कितना हो गया 4. तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 3. m2 कितना है 3 और x1 कितना है -1. तो हमने निकाला 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 3. सो x इज इक्वल टू 2 इंटू 4 8 और -1 इंटू 3 -3. तो 8 - 3 अपॉन 5. देन x इज इक्वल टू 5 अपॉन 8 - 3 कितना है 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1. एंड y इज इक्वल टू इस साइड में देखिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. देन y इज इक्वल टू 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 3. देन y इज इक्वल टू 2 इंटू -3 -6 प्लस 21 अपॉन 5. देन y इज इक्वल टू 15 अपॉन 21 प्लस है और 6 माइनस है. तो 21 से 6 प्लस है तो 15 हो गया. 21 माइनस 15 और अपॉन 5. 5 से कट कर दिया 5 3 15. देन y इज इक्वल टू 3. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P कितना हो गया 1,3. एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? नो सर. नो सर. अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर इसमें जो है पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, 2 बाद में करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट्स -3,10 and 6,-8 इज डिवाइडेड बाई -1,6. तो बताइए इसमें जैसे फिगर दिखाई दे रही है आपको
directly are you seeing figure? Yes, sir. What are the coordinates of A? Minus Quad- 3, 10. Cotton. minus 3 minus 3 comma 10. Yes, sir. And what are the coordinates of B? 6 minus 8. 6 comma minus 8. And coordinates of P? Minus 1. minus 1 and 6. हाँ -1 कॉमा 6 सब हाँ बेटा अपना और रेशियो क्या है? रेशियो बताइए, रेशियो ऑफ एपी एंड पीबी का रेशियो क्या लिया हमने? ये K and 1. K ratio 1. So if we have to find the ratio, then we take K ratio 1. So x1 is equal to -3, y1 is equal to 10, x2 is equal to 6 and y2 is equal to -8. x is equal to -1 and y is equal to 6. तो हम इसमें एक कंडीशन से या तो x से निकाल सकते हैं या y से निकाल सकते हैं। रेशियो में एक ही फॉर्मूला यूज करना है। तो x is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2। तो x की जगह हमने -1 पुट कर दिया इक्वल टू m1 k इंटू 6, x2 कितना है 6 प्लस 1 इंटू -3, x1 कितना -3 अपॉन k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करी -1 से k प्लस 1 की मल्टीप्लाई कर दी इक्वल टू k इंटू 6 कितना होगा 6k और प्लस माइनस हो जाएगा कितना होगा -3। तो अब इससे -1 से मल्टीप्लाई तो -1 से k की मल्टीप्लाई -k -1 इक्वल टू 6k -3। अब देखिए हमने इसको ट्रांसपोज कर दिया, -3 को धर लिया है +3 हो गया और k 6k इसको -k को दूसरी साइड में ले गए k हो गया। तो +3 -1 कितना हो गया 2 इज इक्वल टू 6k + 1k कितना हो गया 7k। तो सो k अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 7। 7 को इधर कर दिया तो k इज इक्वल टू कितना 2 अपॉन 7। k को हम लिख सकते हैं k अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 7। तो रेशियो कितना हो गया हमारा k रेशियो 1 इज इक्वल टू 2 रेशियो 7। सो द लाइन सेगमेंट AB इज डिवाइडेड इन द रेशियो 2 रेशियो 7। समझ में आ गया बेटा? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अभी जो ट्राइसेक्शन का पूछ लेते हैं हम, एक क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, 3। तो इसमें बताइए A and B are 2 points here. P and Q divide the line segment AB into 3 equal parts. What are the coordinates of A? According to the figure, क्या दिया coordinates A के? 4, -1. 4, -1. Yes, right. And B? Minus 2, -3. -2, -3. What are the coordinates of P? X and Y. X and Y. X, Y. And Q? A, A, B. Then x1 is equal to 4, y1 is equal to 1, and x2 is equal to -2, y2 is equal to -3। समझ में आया? Yes, sir. और m1 कितना हो गया 1 + 1 कैसे होता है? तो m1 is equal to कितना हो गया 2 और ठीक है, और m2 कितना हो गया 1, m2 कितना हुआ 1। ठीक है, तो ये m1 is equal to 2 और m2 is equal to 1। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने पहले A m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + x2। यस, तो m1 कितना है हमारा 2 इंटू कितना है -2 प्लस m2 कितना है 1 इंटू 4 और नीचे हो गया 2 + 1। अरे समझे, तो 2 इंटू -2 कितना हो गया -4 प्लस 1 इंटू 4 कितना हो गया 4 अपॉन 2 + 1 कितना हो गया 3। तो A इज इक्वल टू -4 + 4 अपॉन 3। तो -4 + 4 कितना होगा? 0. -4 + 4 0। तो 0 अपॉन 3, 0 अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0. तो यू नो A इज इक्वल, हेलो हाँ जी, तो A इज इक्वल टू हमारा 0। इफ वी राइट 3 अपॉन 0 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A?
इफ ए इज इक्वल टू 3/0 आए तब क्या होगा वैल्यू? 0 3 हाँ, कौन बोल रहा बेटा बताइए? हेलो, योर नेम? इन्फिनिटिव किसने बताया? इन्फिनिटी नेहा ने हाँ, करेक्ट आंसर. If we divide any number by the zero, then we get not defined. If 0 is divided by any number, then the result is 0. 0 ओके, समझ में आ गया बेटा ये? अब देखिए बी का लिया ऐसे हमने m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2. m1 कितना है इसमें? 2. y2 कितना है? -3 प्लस m2 कितना है? 1 इंटू y1 -1 अपॉन 2 प्लस 1. तो b इज इक्वल टू -3 इंटू 2 कितना होगा? -6 और 1 टू -1 कितना होगा? -1. -6 -1 अपॉन 3 तो ये हो गया -7/3. समझ में आ गया बेटा? यस सर Yes, sir. अब देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू क्यू कि क्या हो जाएंगे? 0, -7/3. अब नाउ वी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P. नाउ P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ. अब ये क्या हो जाएगा? सेम रेशियो में डिवाइड हो रहा है, 1:1 मींस P विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AQ. तो हियर x1 इज इक्वल टू 4, y1 इज इक्वल टू -1 एंड x2 इज इक्वल टू 0, y2 इज इक्वल टू -7/3. तो फर्स्ट अब हम मिड पॉइंट का जो है फॉर्मूला लगाएंगे. x इज इक्वल टू x प्लस x2 अपॉन 2. यस, x1 कितना है? 4 प्लस 0 अपॉन 2. 4 प्लस 0 मीन्स 4. तो x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2. 4 डिवाइड बाई 2 मीन्स 2. तो x इज इक्वल टू 2 and y is equal to y1 plus y2. Then y1 -1 plus -7/3 upon 2. Now y is equal to 3 एलसीएम लिया इसमें ऊपर में हमने, तो -3 -7 अपॉन 3 एलसीएम लिया तो और उसके अपॉन 2. Therefore y is equal to -3 -7 -10 और 2 इंटू 3 जो आ जाएगा नीचे आ जाएगा डिवाइड में. ठीक है, 2 से कट के 2 5 या 10 तो y इज इक्वल टू -5/3. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P 2, -5/3. समझ में आया बेटा? हेलो, यस सर यस सर अगर कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन. बताइए बेटा, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम. दोस्तों समझ में आ रहा है ना? नो सर. समझ में नहीं आ रहा? सर आ गया. हाँ, क्वेश्चन नंबर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3. ये वाला क्वेश्चन है बुक में, बुक देख रहा हो? नो Yes, सर. Yes. यस सर हाँ देखिए, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे, स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABC. Lines have been drawn which chalk border at a distance of 1 meter each. किसका And 8 hot pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. As shown in figure, Niharika runs 1/4 the distance AD. निहारिका जो है वो कितनी आ रही? 1/4. AD की डिस्टेंस का 1/4. AD ऑन द सेकंड लाइन, और कौन सी लाइन में जा रही है? सेकंड लाइन. एंड पॉट्स ए ग्रीन फ्लैग. प्री प्लस 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन 8 लाइन. अब प्री कौन सी लाइन में जा रही है? 8 लाइन में, और कितनी चल रही है? 1/5 ऑफ द AD. एंड पोस्ट ए रेड फ्लैग. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग? दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस कितनी है? इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? तब वो उस फ्लैग को कहाँ पोस्ट करेगी? तो ये समझ में आ रहा बेटा आपको? क्वेश्चन समझ में आया? नो सर, ये वाला नहीं आया. No, sir. अच्छा, No, sir. समझा दो. हाँ देखिए, जैसे कह रहा है कि विपिन भाई प्रेजेंट मत करो, बार बार क्यों कर रहे बेटा विपिन? सर आ नहीं रहा होगा.
तो बार सर बार उसे कुछ नहीं करेंगे। फोन आता होगा सर। है बेटा, नहीं बात करो जरा। सर उसे फोन इस्तेमाल करना नहीं आता होगा ठीक से। तो उसको, सर लगता है हो गया। हाँ अब देखिए, ये सर हो गया। ये टू सर कंडक्ट हटा दिया। है बेटा। उसने लेफ्ट कर दिया सर, किसने? सर विपिन चौहान विपिन ने। ने। नहीं ये क्वेश्चन पर दिखाई दे रहा। तो दिखाई दे रहा है। दिखा दे रहा है। सर दे रहा है, मैंने आपको पिन अप कर रखा। अच्छा अब देखिए, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे, स्कूल में एक स्पोर्ट्स डे बनाया जाता है, एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड। और स्कूल का जो ग्राउंड है कैसा है, वो रेक्टेंगुलर है। फिगर देख रखे हैं आपने? सर दोबारा वही काम कर नो दिया सर। विपिन ने। हैं? सर विपिन ने दोबारा प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया। सर देखना सर, अबे सर क्या कर रहा है। सर मैं उसे कॉल कर रहा हूँ। सर का जो सर, मैं क्वेश्चन कॉल है ना करके वहाँ बोल पे रहा पिन अप कर लो। सर जहाँ पे क्वेश्चन दिखा रहे हैं ना वहाँ पे पिन अप कर लो, फिर वो जो करता रहेगा उससे मतलब नहीं है। यस सर। ये अभी सर ये बहुत परेशान कर रहा कलवा। हेलो बेटा, ये डीसी सर सुन रहे हैं, सर बोलना नहीं इसमें कुछ भी। आपको मैडम भी बैठी हुई हैं, फिर मैडम और एसी सर सुन रहे हैं तुम्हारी आवाज। हाँ आप देखिए, आ रहा है, दिखाई दे रहा है। हेलो, यस सर। दिखाई दे रहा है ना यस बेटा? सर। हाँ देखिए, यस सर। तो ये क्वेश्चन जो है आपको फिगर देख रखी बुक में, देखो फिगर जो है, बुक है। अरे मेरे Yes, पास sir. बुक नहीं है। यस हाँ सर, तो बुक बुक में है। देखिए ना बेटा, तो इसमें जो है एक जो लिखा टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड। स्कूल का ग्राउंड जो है वो रेक्टेंगुलर है, उसको हमने ABCD माना है। लाइन लाइंस हैव बीन ड्रॉन, उसमें लाइन खींची गई विद चॉक पाउडर से, ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। हर लाइन जो है 1 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। और देखो ये एक्स एक्सिस हो गई 1 2 3 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर दिखाई दे रहा है। और वाई एक्सिस जो है वो उसमें 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं, ठीक है। और वो भी 1 मीटर ईच 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे गए हैं। समझ में आया बेटा? देखिए निहारिका रन्स, अब देखिए निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस, जितनी एडी की डिस्टेंस है, एडी कितनी 100 मीटर है ना, 100 पॉट्स हो गए तो 100 मीटर हो गई, ठीक है। तो 100 को 100 इंटू 1/4 कितना आ जाएगा? 25, यस करेक्ट है ना। ऑन द सेकंड लाइन में चल रहा है एंड ए ग्रीन फ्लैग, उसने ग्रीन फ्लैग लगा दिया है। प्रीत रन्स 1/5, अब प्रीत कितना गया 1/5 ऑफ एडी का, एडी डिस्टेंस का। तो एडी कितना हो जाएगा, प्रीत का डिस्टेंस कितना होगा? 20 आ जाएगा, ठीक है। ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट ए रेड, उसने रेड फ्लैग लगा दिया। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, अब दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस, तो वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बाय द यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे, अब रश्मि जो है उसके बीच में फ्लैग लगा रही है, ब्लू फ्लैग हाफ वे में, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स, तो वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, तो वो कहाँ पे लगाएगी? तो देखिए इसमें ए के कोऑर्डिनेट्स हो गया 2,25, 1/4 लगाया तो 25 हो गया। बी के क्या हो गया 8 लाइन हो गई, और 1/5 ऑफ 100 कितना हो गया 20, ठीक है। आगे बात समझ में? हेलो, x1 इक्वल टू 2 और y1 इक्वल टू 1/4 इंटू 100 दिखा ना, तो 25। x2 इक्वल टू 8 और y2 इक्वल टू 1/5 इंटू 100 कितना हो गया ये 20। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो अब देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला से, डिस्टेंस बिटवीन ए बी क्या होगा, √x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा है ये? डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ, तो 2 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20 पुट कर दिया, x1 x2 और y1 y2 की वैल्यू पुट कर दिया, तो ये आगे √2 माइनस 8 स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20 होल स्क्वायर। तो 8 माइनस 2 कितना, 2 माइनस 8 कितना होगा -6, तो √(-6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर
तो ये कितना होगा रूट ओवर 6 स्क्वायर 36, 5 स्क्वायर 25, 36 प्लस 25 रूट 61 मीटर। तो द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना हो गया 61 मीटर। मीटर। समझ में आगे बेटा ये? यस सर। यस सर यस सर अब देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी निकालना है। पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, मिड पॉइंट है ये ना। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 कितना होगा 2 प्लस 8 अपॉन 2, 2 प्लस 8 कितना होगा 10 अपॉन 2, देन x इज इक्वल टू 5। सिमिलरली y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। y1 कितना है 25, y2 कितना है 20, तो y इज इक्वल टू 25 प्लस 20 अपॉन 2 कितना होगा 45 अपॉन 2, देन y इज इक्वल टू 22.5 मीटर हो गया। तो फिफ्थ लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर पे होगी। जो फिफ्थ लाइन की डिस्टेंस होगी वो कितना हो गया, डिस्टेंस होगी 22.5 मीटर। Isn't it? Yes, sir. Any problem? Yes, sir. No, कोई sir. problem? नो सर No, sir. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 1, -5 and b -4, 5 is divided by axis. This divided x axis. Also find the coordinates of the point of division. तो if a line divide x axis then y is equal to क्या हो जाएगा 0। तो coordinates of a कितना होगा 1, -5 and b कितना दिया -4, 5 5 and the coordinates of p x, 0. On the x axis the value of y is equal to 0। x axis पे y का वैल्यू क्या होता है 0, y coordinate 0। ओके, x1 is equal to 1, y1 is equal to -5, x2 is equal to -4 and y2 is equal to 5। x is equal to x आएगा और y is equal to 0। then m1 is equal to 1 and m2 is equal to 1। so y is equal to m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। तो y का वैल्यू 0 रखा तो k प्लस k इंटू 5, m1 कितना हो गया k इंटू 5 प्लस 1 इंटू -5 अपॉन k प्लस 5। इसका हमने क्या लिया रेशियो, k रेशियो 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5k - 5 इज इक्वल टू 0 इंटू k प्लस 1। देन 5k इज इक्वल टू 5, देन k इज इक्वल टू 5 अपॉन 5। तो k को लिखते हैं k अपॉन 1, 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। k ratio 1 is equal to 1 upon 1 and then x is equal to m1 x2 plus x2, x is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 and x is equal to 1 into -4 plus 1 into 1 upon 1 plus 1 and x is equal to -4 plus 1 upon 2। -4 plus 1 is कितना होगा -3, then x is equal to -3 upon 2। coordinates of p -3 upon 2, 0। इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। इस क्वेश्चन में किसी को कोई नो प्रॉब्लम सर बताइए बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो इसमें? नो सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। Find the coordinates of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, 2, -4 -3 2, -3 and B 1, 4। 4 देखिए सर्किल देखिए, यहाँ A और B 2 पॉइंट्स है और इसका जो है 0, ओ क्या है सेंटर है 2, -3 और बी दे रखा 1, 4 और ए हमें निकालना है। ठीक है, तो x1 इज इक्वल टू कितना हो गया 1, y1 इज इक्वल टू कितना हो गया 4, x2 y2 हमें निकालना है। x2 y2 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। देन x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। x की जगह पुट कर देंगे 2, x1 1 प्लस x2 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, x2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4, देन x2 इज इक्वल टू 4 - 1 इज इक्वल टू 3। तो आ गया ये एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2,
y की जगह -3 इक्वल टू 4 प्लस y2/2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया y2 प्लस 4 इज इक्वल टू -3 इंटू 2 देन y2 इज इक्वल टू -6 -4 तो दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे कितना हो गया -10 समझ में आ गया बेटा Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बताइए Yes, sir. कोई प्रॉब्लम है तो बताइए इसमें आपको आप तो पूछ ही नहीं रहे कुछ अपना आप ऐसे देख रहे हो बेटा है ना नहीं सर, जब समझ आ रहा सर पूछने की जरूरत नहीं पड़ रही ना। अच्छा सर ठीक है हाँ समझ में आना चाहिए मेन जो है बेटा समझ में आना चाहिए Yes, sir. अब ये क्वेश्चन 6 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में ये बहुत आता है बेटा एक तो टेस्ट सेक्शन वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए अब इसको ध्यान से देखिए बेटा इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order find x and y तो देखिए ये फिगर बनाई हमने ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं हेलो ए के कोऑर्डिनेट्स Sir, 1, 2. 1, 2. इसने यहाँ बताएगी आपका बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं बी इसने पोखरियाल नहीं है क्या ग्रुप में हेलो Sir, नहीं होगी। इसने नहीं है Sir, अच्छा No, sir. विदिश बताओ विदिश Yes, sir. Sir, 4, y. 4, y सी के बताइए माल्यान Sir, X, 6. और डी के बताएगी सोनी डी के कोऑर्डिनेट्स बता बेटा Sir, 3, 5. 3, 5 यस राइट तो देखिए 4 कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल एसी अब हमें जो डायगोनल एसी का मिड पॉइंट आएगा अगर वही डायगोनल बीडी का मिड पॉइंट होगा तो इसका मतलब क्या होगा इफ द मिड पॉइंट ऑफ एसी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बीडी देन ABCD is a parallelogram. Since ABCD is a parallelogram is given, so the diagonals bisect each other. Yes, sir. X1 is equal to 1 and Y1 is equal to 2. X2 is equal to X and Y2 is equal to 6. So here A के area X1 plus X2 upon 2. तो A is equal to 1 plus X upon 2. ये हमने छोड़ दिया. And B is equal to Y1 plus Y2 upon 2 and B is equal to 2 plus 6 upon 2. 8/2 ये हमारा किसके लिए हुआ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC के लिए लिया अब AC के डायगोनल के कोऑर्डिनेट जो है हम BD के अब नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD के लिए सिमिलरली हमने ऐसे ही x1 is equal to 3 y1 is equal to 5 x2 is equal to 4 and y2 is equal to y then A is equal to x1 plus x2 upon 2 अब ए की जगह जो हमने ऊपर निकाला इक्वेशन फर्स्ट उस पर पुट कर दिया 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 7/2 2 से 2 कट हो गया तो x इज इक्वल टू 7 - 1 x इज इक्वल टू 6 सिमिलरली y इज इक्वल टू b इज इक्वल टू रखा y1 प्लस y2/2 और b की जगह हमने क्या निकाला 8/2 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से तो ये पुट कर दिया b का वैल्यू 8/2 पुट करा और y1 कितना है 5 प्लस y/2 2 से 2 कट हो गया तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 8 देन y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 y इज इक्वल टू कितना आ गया 3 ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो स्टेप में करना है फर्स्ट स्टेप AC और सेकंड स्टेप BD डायगोनल AC कोऑर्डिनेट्स ऑफ डायगोनल AC इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ डायगोनल BD तो ऐसे करेंगे तो इस क्वेश्चन को आराम से हो जाएगा ठीक है बेटा आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन करना है ये ठीक है समझ आ गया Yes, sir. Yes, sir. अगर अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है ना Sir, हाँ बेटा एक और हेलो एक बार और अच्छा ठीक है ओके बेटा देखिए बेटा इसमें ये क्वेश्चन इसमें इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order तो A B C D जो है ऑर्डर में लिया गया है फाइंड x एंड y और हमें इसमें अननोन क्वांटिटी x और y है उसको फाइंड करना है तो जैसे फिगर देख रही है बेटा ये हेलो Yes, sir. सोनल A B C D
ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम गिवन है और P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या है 1,2, बी के कोऑर्डिनेट्स कितने दिए हैं? यस सर। बताओ सोनल, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी सर 4, y। 4, और सी के कोऑर्डिनेट्स X, कोऑर्डिनेट्स ऑफ और डी। 3, ये दिनदयाल बमराडा नहीं बोल रहा, बमराडा यस सर। दिव्यांश, यस समझ आ रहा है सर। बेटा? समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर आता है। और कपिल, हेलो कपिल, कपिल हेयर, कपिल ये कौन है भाई? नहीं है अच्छा, ये कौन बजा रहा था कि कौन कौन लगा रहा था ये? सर, वंशिका शर्मा। नहीं बेटा, ऐसे नहीं हमने क्या कहा आपको, शांत होकर पढ़ी बेटा। यस सर। तो x1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू 2। अभी हमने x1 y1 x2 y2 ले लिया ना। सिमिलरली x2 इज इक्वल टू x, y2 इज इक्वल टू 6। तो पहले हमने a निकाला, a इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 कितना 1 प्लस और x2 कितना x, तो 1 a इज इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन 2। ऐसे b निकाला y1 प्लस y2 अपॉन 2, b इज इक्वल टू y1 कितना 2 और y2 कितना है 6, तो 2 प्लस 6 अपॉन 2, 2 प्लस 6 हुआ 8 अपॉन 2। ये हो गया, समझ में आ गया था? यस सर। A और B आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC। अब नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD। अब BD डायगोनल के निकालना है, तो x1 इज इक्वल टू कितना है 3, y1 इज इक्वल टू 5, x2 इज इक्वल टू 4 एंड y2 इज इक्वल टू y। देन a इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 कितना 3 और x2 कितना हो गया 4, तो a इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अपॉन 2। अब a की जगह वैल्यू पुट करा हमने 1 प्लस x फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन देखना AC में 1 प्लस x अपॉन 2। सोनल यस सर। बेटा, जो हमने इक्वेशन फर्स्ट बनाई है, देखा ना, a इज इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन 2, तो वो यहाँ पे a में पुट कर दिया। 1 प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2, 2 से 2 कट हो गया। हाँ बेटा, सर लिखेंगे नहीं सर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सर ये बी। हाँ हाँ लिख देना सर ब्रैकेट में करके ना। जी हाँ। तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 और x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 6। ऐसे b इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब b का वैल्यू पुट कर दिया इक्वेशन 2 से, 8 अपॉन 2 इक्वल टू 5 प्लस y अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल कर दिया, देन y प्लस 5 इज इक्वल टू 8, देन y इज इक्वल टू 8 माइनस 5, देन y इज इक्वल टू 3। समझ में आ गई है? अब समझ में आया सोनल? हाँ यस सर। आगे सुनिए बेटा। प्रतीक क्या था? प्रतीक टाइम कितना हो गया? 11 बज गए। तो ये अभी एक लास्ट क्वेश्चन और है बेटा, है ना? यस सर। यस तो लास्ट क्वेश्चन पढ़ रहा है ना। इफ a and b are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of p such that AP is equal to 3 upon 7 AB and P lies on the slice segment AB. So here A and B are 2 points, coordinates of A -2, -2 and B 2, -4. Ratio is 3, 4 and P का है 2x, y। तो अब देखिए इसमें बेटा दिया, रेशियो दिया AP इज इक्वल टू 3 अपॉन 7 AB। AP अपॉन AB इज इक्वल टू 3 अपॉन 7 हुआ, तो PB कितना हो जाएगा? PB निकालना पड़ेगा बेटा हमें। PB इज इक्वल टू AB माइनस AP। देख रहा फिगर में? तो PB इज इक्वल टू 7 माइनस 3, PB इज इक्वल टू 4। तो हमारा रेशियो M1 रेशियो M2 जो बना कितना बना हमारा? 3:4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात में। यस सर। और x1 इज इक्वल टू Yes, -2, sir. y1 इज इक्वल टू -2, x2 इज इक्वल टू 2, y2 इज इक्वल टू -4। देन x इज इक्वल टू अप्लाई किया हमने जो है फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है? 3 इंटू x2 2 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 4।
then Yes, x sir. is equal to 6, 2 into 3, 2 into 3 कितना होगा 6 minus 4 into minus 2 minus 8, तो कितना होगा 6 minus 8 कितना हो गया minus 2 upon 7. बोलिए सर जरा। कनेक्शन लॉस हो गया सर, इंटरनेट चला गया स्कूल का। हेलो इंटरनेट चला गया। टाइम भी हो गया ना।